In continuation with the series of nuclear physics or radiation and safety, today we are going to discuss about properties of the nucleus. So let us start the video. Hello students, in the last lecture we have studied about Bremsstrahlung and Auger effect. In the same series, continuing with the chapter Basics of Nuclear Physics, today we are going to study about properties of the nucleus. If we talk about atom, we know atom consists of electrons and nucleus. Electrons are revolving around the nucleus, and nucleus consists of protons and neutrons. Protons have positively charged, while we know that neutrons are neutral particles. Atom is so tiny that it cannot be seen with naked eyes or with the help of microscope. Its diameter is of the order of 10 raised to power minus 8 centimeter. And we know that electrons have negligible mass. So whole of the mass of an atom is supposed to be concentrated in the nucleus. Almost 99.99% of the mass of an atom is supposed to be concentrated in the nucleus. So in order to study the atom, we have to first study the properties of nucleus, where whole of the mass of atom is supposed to be concentrated. So we are going to study about the properties of the nucleus, which are important in order to study about the atom. So the properties which we are going to discuss here are, first one is nuclear shape, size of the nucleus, mass number, and nuclear mass. Next comes nuclear density, wave mechanical properties, spin, nuclear spin, magnetic moment, which we say nuclear magnetic moment. Then the last one is binding energy. So these are the important properties of the nucleus, which are important to study if we are going to study about the atom. And these properties are nuclear shape, size of the nucleus, mass number and nuclear mass, nuclear density, wave mechanical properties, nuclear spin, magnetic moment and binding energy. अब इन सारी प्रॉपर्टीज को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो अपने आप में पूरे कंसेप्ट हैं. सो पहली प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है साइज ऑफ द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस का साइज कितना है या किस तरह से न्यूक्लियस के साइज के बारे में बताया गया है. तो सबसे पहले तो एक चीज जो बिल्कुल बेसिक ध्यान रखने वाली है वो ये है कि न्यूक्लियस के बारे में हमें कहाँ से पता चला. फिर हम आते हैं उसके साइज के ऊपर. तो हमने एक एक्सपेरिमेंट, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, दैट इज रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो हमें न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले पता चला था जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उससे. उसमें रदरफोर्ड को क्या, जो उन्होंने कंक्लूजन निकाले थे वो क्या थे, उन्होंने एक एल्युमिनियम की फॉइल को सामने रख के उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स, जो हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को जब एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर उन्होंने बम्बार्ड करवाया तो उन्हें क्या मिला कि ये अल्फा पार्टिकल्स
कुछ 90 डिग्री पे रिपेल हो गए, कुछ इस तरह से रिपल्शन हुई। तो उन्हें जो उनका कंक्लूजन था वो ये था कि कहीं ना कहीं इस एल्युमिनियम फॉइल में पॉजिटिव चार्ज था, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से रिपेल हुए। तो उन्होंने वो रीजन जहाँ पर उन्हें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिला, उस रीजन को उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। तो अब इस एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आपको एक बेसिक सा आइडिया दे दिया कि रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, तो वहाँ से हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला था। एक्सपेरिमेंटली उन्होंने साइज के बारे में भी कंक्लूजन निकाले। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो किस बेस पे डिफाइन किया गया है, तो वो डिफाइन किया गया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वेव फंक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि द साइज ऑफ approximate size, we cannot tell about the exact size, so here we are writing that approximate size of nucleus is based on the assumption of wave function. And what is this wave function? This wave function tells us the probability of finding nucleons inside the nucleus. एंड यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स से हमारा क्या मतलब है? न्यूक्लियॉन्स मीन्स न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, कंबाइनली हम इनको नाम देंगे न्यूक्लियॉन्स। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में जो अप्रोक्सीमेट आइडिया हमें, रफ आइडिया मिला, वो मिला हमें वेव फंक्शन के बेसिस पर। ये वेव फंक्शन क्या था? ये हमें प्रोबेबिलिटी बताता है कि न्यूक्लियॉन्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है किसी न्यूक्लियस के अंदर उनको फाइंड करने की। जैसे जैसे हम इस न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, ये वेव फंक्शन हमारा, इसको हम डिनोट करते हैं साई से, ये डिक्रीज करता जाता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, इन न्यूक्लियंस को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, जो बिल्कुल क्लियर है। अगर हम न्यूक्लियस से बाहर चले जाएं, ऑर्बिटल्स में चले जाएं, तो वहां पर वेव फंक्शन हमें जीरो मिलेगा। रीजन बीइंग कि वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज जीरो, वहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो वहां पर हमें साई जीरो देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, ये साई डिक्रीज होता जाता है। और एक्सपेरिमेंटली हमें क्या रेडियस यहाँ पर न्यूक्लियस की मिलती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर, विच इज कॉल्ड 1 फर्मी। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज सपोज्ड 10⁻⁻15 मीटर, and experimentally it is also find out that the volume of nucleus is proportional to this A. What is this A? This is mass number, and mass number comprised of number of protons plus number of न्यूट्रॉन्स। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस थी, ये किसके प्रोपोर्शनल थी? ये प्रोपोर्शनल थी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, जिनको हम कंबाइनली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू number of nucleons, and that is denoted by A, which we call as mass number. We know that size of जो न्यूक्लियस की शेप हम अज्यूम करके चलते हैं, that is spherical. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर we can write that 4/3 pi r cube is proportional to A, where r is radius of nucleus. From here
we can say that 4/3 is constant, pi is constant. We can write that this r cube is proportional to a. अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो r क्यूब इज इक्वल टू r नॉट विच इज अ कांस्टेंट, a proportionality constant. From here we can say that r is equal to r naught a की whole power 1/3. From here we can calculate the radius of nucleus of any atom, where the value of r naught varies from value of r naught, ये सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, वेरीज फ्रॉम 1.2 to 1.6 फर्मी. इस R नॉट के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट दिस R नॉट वेरीज फ्रॉम एटम टू एटम, बट इफ वी चेक फॉर mass number greater than equal to 20, it remains constant. R naught remains constant. So from here we can calculate the radius of nucleus, or indirectly we can say that we can check the size of nucleus. Please pause the video to note it down. Second property is mass number and nuclear mass. इन दोनों को यहाँ पर अलग अलग से डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको इन दोनों में डिफरेंस यहाँ पर देखना होगा कि मास नंबर और न्यूक्लियर मास में क्या डिफरेंस आता है. तो सबसे पहले बात करते हैं हम मास नंबर के बारे में. सिंस हमें पता है, अगर मैं ये न्यूक्लियस बनाऊं, इफ दिस इज न्यूक्लियस, हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, जिनको हम कंबाइनली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स. तो न्यूक्लियस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं न्यूक्लियॉन्स. तो अगर मैं मास नंबर की बात करूं तो मास नंबर क्या होगा, दैट इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. दैट इज वी कैन से दैट द मास नंबर इज sum of the nucleons. So we can say that, and mass number is denoted by capital A. So we can say that A is equal to number of protons plus number of neutrons, or I can write that this mass number A is equal to number of nucleons. So this is the mass number, and in this way we calculate the mass number if we are asked to calculate the mass number. अगर अब हम देखें, अगर मैं बात करूं कि एटम का मास कितना होगा, अब एटम का मास होगा दिस मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, और वी कैन से दैट मास नंबर A प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, तो जो हमने पहले भी कहा था दैट होल ऑफ द मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. तो यहां से हमें मिलता है कि अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल जो होता है, अगर हम इसको निगलेक्ट कर दें तो एटम का मास हमें किसके बराबर देखने को मिलता है, दैट इज मास नंबर के इक्वल हमें देखने को मिलता है. अब बात करते हैं न्यूक्लियर मास के बारे में. अब न्यूक्लियर मास क्या होता है, न्यूक्लियर मास इज द सम ऑफ एक्चुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. तो न्यूक्लियर मास हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये तो रहा हमारा एनालिटिकल मेथड कैलकुलेट करने का कि हम मास नंबर कैसे निकालेंगे. जब न्यूक्लियर मास की बात आती है तो इट इज द सम ऑफ एक्चुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. अब ये एक्चुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ
स्पेक्ट्रोग्राफ। तो स्पेक्ट्रोग्राफ से हम न्यूक्लियर मास को कैलकुलेट कर लेते हैं और वेरी एक्यूरेटली न्यूक्लियर मास या मास नंबर को डिफाइन करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज AMU। दिस AMU इज, लिखने का तरीका इसको हम स्मॉल में लिखते हैं, तो स्मॉल में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। ये हम एटॉमिक मास यूनिट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि चाहे हम न्यूक्लियर मास की बात करें या मास नंबर की बात करें, बहुत स्मॉल क्वांटिटीज हैं। इन स्मॉल क्वांटिटीज को वेरी एक्यूरेटली दिखाने के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। अब इस एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/6 ऑफ वन कार्बन एटम। 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1 AMU दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/6 ऑफ द 1 कार्बन एटम। तो इसी के बेस पर अब हम जो प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास है, या मास नंबर या न्यूक्लियर मास है, वो यहाँ पर लिखेंगे। टिल देन प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कुछ फैक्चुअल डाटा है जो आपको ध्यान रखना है। 1 AMU इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर हम AMU की टर्म में मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखना चाहें तो वो इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है 1.0072 AMU। अगर इसको kg में हम कन्वर्ट करें तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इन टर्म्स ऑफ AMU इज 1.0086 AMU एंड इन टर्म्स ऑफ kg इज 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इस तरह से हम मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन को AMU की टर्म में लिख सकते हैं। इफ वी हैव टू कन्वर्ट 1 AMU in terms of एनर्जी, तो 1 AMU कितनी एनर्जी के इक्वल होगा? अगर इसे कन्वर्ट करना हो, वी नो दैट E is equal to mc², putting the value of m, that is 1 AMU is equal to 1.66 into 10⁻⁻27 kg into C is 3 into 10⁸ का whole square. If we calculate this, it comes out to be 1.49 into 10⁻⁻10 जूल। अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो वी कैन convert this and it comes out to be in terms of electron volt, that is 931 mega electron volt. So ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि write 1 AMU in terms of electron volt or in terms of energy. So this is the way to convert this 1 AMU into the energy, and 1 AMU is equivalent to 931 mega electron volt of energy. Please pause the video to note it down. The third property is nuclear density. We know that nuclear density or density is equal to mass per unit volume. So nuclear density is a term which describes both, किस को डिस्क्राइब करती है? both, that is first we can say that mass of nucleus and volume का मतलब है and size of nucleus. So nuclear density is a term which describes both mass of nucleus and size of nucleus, and we all know that density is equal to mass per unit volume. Rho is equal to mass per unit volume, and this m is equal to m into n upon, we know that v is equal to 4/3 pi r cube.
this m is mass of nucleon and this small n is number of nucleons. You can write mass of nucleon into number of nucleon divided by 4/3 pi r cube. अगर आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2.9 into 10 raised to power 17 kg, and this nuclear density is always constant irrespective of the size and mass of the atom. So we can say that it is always remains same irrespective of the size and mass of atom. Please pause the video to note it down. Fourth important property is shape of the nucleus. जो हम अज्यूम करके चलते हैं वो है कि न्यूक्लियस की शेप स्फेरिकल होती है। अगर हम न्यूक्लियस की शेप को स्फेरिकल मान के चलें तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस का सेंटर ऑफ मास और जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो आपस में कोइंसाइड करते हैं। इफ वी assume the shape of nucleus as spherical, then we can say that center of mass and center of charge coincide. That is spherical shape. We can write that center of mass and center of charge कोइंसाइड। अगर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ चार्ज कोइंसाइड कर जाएं तो इसका मतलब ये है कि डाइपोल मोमेंट कितना होगा। दैट मीन्स दैट डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू 0। अगर डाइपोल मोमेंट 0 आ गया तो वी कैन नॉट टेल एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। तो अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो हम शेप के बारे में कोई अलग से कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि शेप ऑफ न्यूक्लियस इज स्फेरिकल। बट एक्सपेरिमेंटली द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, it can be prolate, it can be of another shape. So from the property this property that is dipole moment, we cannot tell any further information about the shape of the nucleus. तो यहाँ पर एक अलग से टर्म आती है that is called quadrupole moment, on the basis of which we tell about the shape of the nucleus. And what is this quadrupole moment? It tells us the, or we can say that it measures departure of nucleus from its spherical shape. क्वाड्रपल मूवमेंट हमें क्या बताता है कि कोई भी न्यूक्लियस अपने स्फेरिकल शेप से कितना डिपार्चर हुआ है, उसके बेस पे हम उसकी शेप डिफाइन कर सकते हैं। तो क्वाड्रपल मूवमेंट हमें कब देखने को मिलेगा? जब सेंटर ऑफ चार्ज और सेंटर ऑफ मास आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगे। तो आप यहां पर ये भी मेंशन कर सकते हो दैट इन केस ऑफ वी कैन हैव क्वाड्रपल मूवमेंट when center of mass and center of charge do not coincide. So क्वाड्रपल मोमेंट के बेसिस पर हम 3 शेप न्यूक्लियस की डिफाइन करते हैं। वो 3 शेप्स कौन कौन सी है वो यहां पर देख लेते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रपल मोमेंट ये 3 टाइप की शेप हम डिफाइन करते हैं, इन विच द फर्स्ट वन इज दैट इज स्फेरिकल,
if the shape is spherical, in this case quadrupole moment, that is q, will be equal to 0. This shape is called प्रोलेट. और प्रोलेट शेप हम कब बोलेंगे? इफ क्वाड्रपल मोमेंट इज पॉजिटिव. कुछ इस तरह की शेप फिर हमें देखने को मिलेगी. एंड द थर्ड वन इज ऑब्लेट. और ऑब्लेट शेप हमें कब देखने को मिलेगी? इफ क्यू इज निगेटिव. तो यहां से आपके पास MCQ में भी क्वेश्चन बनता है. प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. इसके बाद 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पर रह गई हैं. दैट इज वेव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज अनदर वन इज स्पिन, एंड द थर्ड वन इज बाइंडिंग एनर्जी. लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, तो इस वजह से हम जो बाकी 3 प्रॉपर्टीज रह रही हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. तब तक आप अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कीजिए. अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मेल करके, मैसेज करके किसी भी तरह अपने डाउट पूछ सकते हैं. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. थैंक यू.